بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی۔ ترمیم سے مرزا وہاب کے میئر بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ کوئی بھی شخص میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین بن سکتا ہے۔ میئر کراچی کو 6 ماہ کے اندر اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم نے ترمیم کی حمایت کر دی۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس پھر ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ اجلاس میں میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے اہم ترمیم منظور کر لی گئی۔ ایوان میں تقریر کرتے ہوئے وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ بولے، یہ ترمیم آئین کے مطابق پیش کی گئی ہے۔ جس طرح وفاق میں کوئی شخص وفاقی وزیر بن جاتا ہے، 6 ماہ کے اندر منتخب رکن ہوتا ہے، یہ اسی طرز کی ترمیم ہے۔ تو وہی جو امینڈمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ کے لیے بھی لائی گئی ہے کہ جو کارپوریشنز ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں، میونسپل اور ٹاؤن کمیٹیز ہیں، وہاں پہ بھی کوئی بھی اس پروسیس میں حصہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ آئینی طور پر 6 ماہ کے اندر وہ خود کو الیکٹ کروا لے، اور اگر وہ الیکٹ ہوگا تو کنٹینیو کر سکے گا، اگر وہ الیکٹ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اس کو سیٹ چھوڑنی پڑے گی۔ ترمیم کی ایوان میں جی ڈی اے اور ایم کیو ایم نے بھی حمایت کی۔ ایوان میں تحریک انصاف کے ارکان موجود نہیں تھے، جس کے بعد قائم مقام اسپیکر نے ترمیم کو متفقہ طور پر منظور کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ Motion is that title of the bill to stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against it may say no. Ayes have it, and the title of the bill to stand part of the bill. Now third reading. Madam, I move that the bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against it may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law unanimously. Thank you, Madam Speaker. میئر کراچی کو 6 ماہ کے اندر اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق میئر کراچی کے لیے مرزا وہاب انتہائی مضبوط امیدوار ہیں، جس کی تعیناتی کا اعلان بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔ اور تحریک انصاف کے محب وطن رہنما عمران خان کو غدار قرار دیں، ہم ساتھ دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا ایوان میں خطاب۔ مزید کہا، فیصلہ تحریک انصاف کو کرنا ہے کہ اسے سیاسی جماعت بننا ہے یا کالعدم۔ کراچی میں امن برقرار رکھنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، جو سڑک پر نکلے گا اسے دھر لیا جائے گا، بسیں توڑنے والوں کے چہرے پہچان لیے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے جو شروعات کی، جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کی، ہماری بڑی کلیئر ریسٹرکشنز تھی ہماری پولیس کو، لا انفورسمنٹ کو، کہ جی پرامن احتجاج کہیں پہ بھی کوئی کرنا چاہے اس کو پوری اجازت ہے، ہم سیاسی جماعت ہیں، پوری اجازت ہے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے۔ ایک پیپلز بس سروس کی جو شرجیل میمن صاحب بیٹھے بس تھی، اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک وہ بہادر جوان جو ہے پہلے لکڑیوں سے اس کی شکل بھی آتی، چھوڑیں گے نہیں، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور جتنے اور باہر نکلیں گے سب کو کریں گے گرفتار اور سزائیں دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان بننا چاہتی ہے یا اس ملک کی ایک سیاسی جماعت بننا چاہتی ہے، یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کراچی میں جو انہوں نے نقصان کیا، کیسز رجسٹرڈ ہیں، ہم ہر اینڈ پہ جائیں گے کراچی میں امن بحال کرنے کے لیے۔ یہ جو بھی غداروں کا ساتھ دے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس ملک کے لوگ غداروں سے جیسے نپٹتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور اس ملک کے لوگ انشاءاللہ تعالی ان غداروں کو سے باقاعدہ نپٹیں گے، اور جو انہوں نے ایک ڈھکوسلا بنایا ہوا تھا، ایک جھوٹ پروپیگیٹ کیا تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا کہ وہ کسی سیاسی پارٹی پر پابندی کے حامی نہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی پر منحصر ہے کہ وہ سیاسی جماعت رہنا چاہتی ہے یا دہشت گرد تنظیم۔ آج زمالی کی رپورٹ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس، پی ٹی آئی کو ہدف تنقید بنا لیا۔ بلاول بھٹو زرداری بولے کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈز کرپشن کے مقدمے میں نیب نے گرفتار کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے کہ نیب کو بند کیا جائے۔ عمران خان کی حکومت میں ہم نے نیب قوانین میں ترمیم کی بارہا کوشش کی، لیکن سب سے زیادہ مخالفت عمران خان نے کی۔ اب ہماری حکومت نے نیب قانون میں ترمیم کی تو اس کا پہلا سیاسی فائدہ عمران خان کو ہوا۔ ہم ہی تھے جس کا یہ سٹانس تھا کہ نیب میں تبدیلیاں لے کر آئیں، نیب کو بند کیا جائے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے۔ ہمارا بات نہیں مانا گیا۔ خان صاحب نے اس کے حکومت میں رہتے ہوئے
और हुकूमत से बाहर निकलने के बाद भी नैब रिफॉर्म का मुखालिफत किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि GHQ पर तालिबान और फिर PTI ने हमला किया। जिन्ना हाउस पर पहले BLA और अब PTI ने हमला किया। गुज़श्ता 2 रोज़ पाकिस्तान की तारीख के स्याह दिन हैं, जिसमें PTI ने खुद को सियासी जमात नहीं बल्कि अस्करियत पसंद जमात साबित किया है। एक तरीके तालिबान पाकिस्तान ने GHQ पे हमला किया है और दूसरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ। जहां तक मुझे याद है, बलोचिस्तान में जिन्ना के घर पे BLA ने हमला किया है और उसके बाद लाहौर का जिन्ना हाउस पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने हमला किया है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि वो नहीं चाहते कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगे, के ज़रिए मसाइल का हल निकाल कर वक्त पर आम इंतखाबात करवाए जाएं। बिलावल भुट्टो ने हफ्ते के रोज़ कराची में बल्दियाती इंतखाबात की जीत की खुशी में जश्न मनाने का भी ऐलान किया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। नाज़रीन, सियासी हलचल और दरामदी बिल की तलब पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। एक दिन में अमरीकी डॉलर 8 रुपये 71 पैसे महंगा होकर पहली बार 298 रुपये 93 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। 4 कारोबारी रोज में अमरीकी डॉलर 15 रुपये 34 पैसे महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 1800 अरब रुपए का इजाफा हो चुका। डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, रुपया तारीखी कम तरीन सतह तक गिर गया। मुल्क में जारी सियासी सूरत-ए-हाल और दरामदी बिल की तलब पर रुपए पर शदीद दबाव बढ़ गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक तलब पे एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपए 71 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में पहली बार अमरीकी डॉलर 298 रुपए 93 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 4 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में डॉलर 15 रुपए 34 पैसे महंगा हो चुका है। 4 रोज में डॉलर 15 रुपए महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 1800 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। फॉरेस्ट एसोसिएशन सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि मुल्क में जारी सियासी हलचल की सूरत-ए-हाल ने रुपए पर शदीद प्रेशर बढ़ा दिया है। डॉलर महंगा होने से मुश्किलात बढ़ेंगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत पाकिस्तान को मैशियत को बचाना और रुपये को बचाना है, और पूरी हुकूमत की जो रेपुटेशन है वो डॉलर बढ़ने की वजह से 2 पे लगी। डॉलर बढ़ता है तो रेट कर्जे बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, रेपुटेशन ख़राब होती है, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। तो डॉलर कोई आम चीज नहीं है। पाकिस्तान की कहते हैं ना इकानमी की रूह डॉलर के अंदर है इस वक्त। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी प्रेशर रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 299 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। यूरो 3 रुपए महंगा होकर 323 रुपए और बरतानी पाउंड 9 रुपए महंगा होकर 375 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में इमारती दरहम 1.5 रुपए महंगा होकर पहली बार 82 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 2 रुपए 30 पैसे महंगा होकर 80 रुपए 80 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज और हंगामा आराई के मुकदमे में गिरफ्तार 25 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज और हंगामा आराई के मुकदमे की समाअत हुई। शाह लतीफ़ थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार 25 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिमान ने खिलाफ हंगामा आराई और जलाओ घेराव के इल्ज़ाम हैं। मुल्जिमान के वकील खालिद महमूद एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि तहरीक इंसाफ के कारकुन पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक़ है। पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। अदालत ने 25 मुल्जिमान को फ़ीकस 5000 मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। PTI और सिविल सोसाइटी की जानिब से 3 तलवार पर एहतजाज करने वालों में 13 वर्कर्स को हिरासत में ले लिया गया था, जिनमें 7 खवातीन और 6 मर्द शामिल हैं। SSP असद रजा के मुताबिक तमाम खवातीन को रिहा कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, PTI और सिविल सोसाइटी की जानिब से आज 3 तलवार पर एहतजाज जब किया जा रहा था तो एहतजाज करने वालों में से 13 वर्कर्स जो है वो हिरासत में लिए गए थे। SSP असद रजा से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि 7 खवातीन और 6 मर्द को जो है वो हिरासत में लिया गया था। जिस तरीके से दफ़ा 44 में नाफिज की गई है कि 4 लोग से ज़ायद जो है वो खड़े नहीं हो सकते, तो फिलहाल जो है वो जितनी खवातीन हिरासत में ली गई थी तमाम को जो है वो रिहा कर दिया गया है। 3 तलवार से हिरासत में ली गई खवातीन को जो है वो रिहा कर दिया गया है, जबकि 6 मर्द जो है वो ज़ेरे हिरासत अभी ताहाल है। जबकि SSP असद रजा के मुताबिक जो है वो तमाम खवातीन को जो है वो छोड़ दिया गया। जी ठीक है अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका।
पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए MQM की बल्दिया टाउन में रैली, मुतहदा कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत, शुरका की पाक फौज के हक में नारेबाजी। MQM के कारकुनान का PTI पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। साबिक रुकने सिंध असम्बली कामरान अख्तर ने कहा कि MQM पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। MQM PTI के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई। बल्दिया टाउन में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। MQM पाकिस्तान के कारकुनान और रहनुमा पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे। इसे खिताब करते हुए साबिक रुकने सिंध असेंबली कामरान अख्तर बोले, पाकिस्तान की तारीख में 9 मई स्याह धब्बा है। इमरान खान मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। उनकी जमात को फौरी कलअदम करार देना चाहिए। सियासत और पाकिस्तान की तारीख को पलट कर रख दिया है इसने। पाकिस्तान की तारीख में 9 मई सिया धब्बा, सिया बाब है, सिया धब्बा है। से टोले को जो है वो कलअदम करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद की जाए और उसके जितने भी हवारी हैं सबको सख्त से सख्त इबरतनाक सजा दी जाए। कामरान अख्तर का कहना था कि ये जो पुरअमन धरती है इसके पीछे खाकी वर्दी है। पाक आर्मी की बदौलत आज इस मुल्क में अमन कायम है। ये जो पुरअमन धरती है इसके पीछे खाकी वर्दी है। तो मेरे भाई ये इस मुल्क दुश्मन के खिलाफ MQM का एक कारकुन और कराची शहर मुहिब्बे वतन आवाम का शहर है, बानियाने पाकिस्तान बनाने वालों का शहर है। यहाँ पर इस समीत इसके चेलों को कोई जगह नहीं मिलेगी। रैली में शरीक कारकुनान का कहना था कि वो पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। MQM पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। कैमरामैन जान शेर बलोच के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट खदमात की फराहमी तीसरे रोज़ भी मुअत्तल रही। टेलीकॉम इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ के दौरान टेलीकॉम कंपनीज़ को रेवेन्यू में 1 अरब 60 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना हुआ। टेलीकॉम खदमात से हुकूमती महसूलात में 57 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा। टेलीकॉम इंडस्ट्री के ज़राए के मुताबिक इंटरनेट ब्रॉडबैंड से ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सर्विसेज, होम डिलीवरी और राइड सर्विसेज भी मुतासर हो रही हैं। मोबाइल इंटरनेट पर मुनहसर ऐप्स बंद होने से उनसे मुंसलिक अफराद का रोज़गार शदीद मुतासर हुआ है। डिजिटल अदायगियाँ, क्रेडिट कार्ड्स भी मुतासर हैं। PTI के डेटा के मुताबिक मोबाइल फ़ोन इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 12.50 करोड़ है। शहर कायद में गुज़श्ता 2 रोज़ से इंटरनेट सर्विस बंद होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने लगे हैं। निजी कंपनीज के तहत ऑनलाइन बाइक सर्विसेज फराहम करने वाले राइडर्स इंटरनेट ना होने से सवारियों की राह तकने लगे। इंटरनेट की बंदिश, ऑनलाइन सर्विस से वाबस्ता अफराद की आमदनी मुतासिर। ऑनलाइन बाइक सर्विस फराहम करने वाले बाइक राइडर्स इंटरनेट बंद होने के सबब रोजगार की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। कहते हैं सुबह से सड़क पर खड़े हैं, इंटरनेट बंद होने से कोई राइड नहीं आ रही। दिन में 1000 रुपए कमाते थे, अब इससे भी गए। बहुत परेशानी है सर, अभी हमारे पास ना राइड आ रही है, काम बिल्कुल नहीं है हमारे पास और बेरोज़गार घूम रहे हैं। 1000-1100 रुपये कमाने वाले हैं दिन में और वो भी हमें नहीं मिल रहा। हम बहुत परेशान हैं सर। यार इंटरनेट सर्विस बंद है और हमारा रोज़गार इसी पे चल रहा है। अब हम क्या कह सकते हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई, इतना पेट्रोल बढ़ गया, हर बंदा परेशान है। क्या बोले, अब हम यही बोलेंगे अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारा भी मसला हल हो जाए, इनका मसला भी हल हो जाए। PTI चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाली हंगामा आराई और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, जिसके बाइस ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। बिजली के सताए अवाम पर के इलेक्ट्रिक ने महंगाई का एक और झटका दे दिया। कराची वालों के लिए बिजली 3 रुपए 93 पैसे महंगी कर दी गई है, जिस पर शहरियों ने शदीद गुस्से का इजहार किया है। बात करेंगे इकरा आवान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ और लाइन्स एरिया के मकीन बिजली की आदम फरहमी की वजह से वैसे ही मुश्किलात का शिकार हैं और कराची वालों के लिए नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कराची वालों के लिए बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमत में 3 रुपये 93 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से कराची के शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। मैं इस वक्त लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। इस इलाके में बिजली तो वैसे भी आती नहीं है और अब बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया, तो उस हवाले से बताइए। 3 रुपये 93 पैसे उन्होंने इजाफा कर दिया और बिजली तो हर 2 घंटे बाद चली आती है। अभी 8:30 बजे आई है, 9 बजे फिर चली आएगी। यहाँ के तो लोग सारे परेशान हैं।
पेशेंट भी नहीं है, गरीब लोग सारे परेशान, हर जगह का ये कराची का पूरा ही हाल बहुत बुरा है। बिजली हर 2 घंटे बाद चली जाती है, 11 बजे जाती है तो फिर 12:30 बजे आती है। ये जानबूझ करके इतना बढ़ा दिया, इतना थोड़ी बढ़ा है। या तो इनको चाहिए सोलर सिस्टम फ्री करें, ड्यूटी फ्री करें, हर आदमी सोलर सिस्टम लगा ले। जी, तो आपने देखा कि यहाँ के जो शहरी हैं, जो मकीन है, वो शदीद परेशानी का शिकार है। उनका यही कहना है कि बिजली तो आती नहीं है, मगर हर गुजरते दिन के साथ बिजली की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। बिजली की कीमत में 3 रुपये 93 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और इसका जो इतलाक है वो सिर्फ मई के महीने में होगा। बिजली सस्ती हो ताकि जो कराची के बासी हैं, जो कराची के शहरी हैं, वो सुख का सांस ले सकें और इस गर्मी में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की जो अदम फरहमी है वो बेहाल हो ताकि इस गर्मी में शहरियों को रिलीफ फराहम हो सके। कराची वालों के लिए सस्ता आटा ख्वाब बन गया। शहर में आटा बहरान तो खत्म हो गया मगर कीमतों में कमी नहीं आ सकी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची में आटा बहरान का खतरा टल गया, लेकिन शहरियों के लिए सस्ते आटे का हुसूल ताहाल नामुमकिन बना हुआ है। ओपन मार्केट में गंदुम 118 रुपए किलो तक पहुंच गई, जबकि शहर में चक्की का आटा 160 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। चक्की मालकान कहते हैं कि सरकारी गंदुम का मयार अच्छा नहीं होता। ओपन मार्केट से गंदुम अच्छी मिल जाती है लेकिन कीमत ज्यादा होती है। गवर्नमेंट के रेट जो है इंशाल्लाह भी गवर्नमेंट वालों से उस दिन भी हमारी फूड वाला से यही मुलाकात हुई कि इंशाल्लाह वो अपनी मिलों से हमें जो है ना आटा लेके दे देंगे। गवर्नमेंट वाला जो आटा रेट पे होता है इंशाल्लाह तो उस पर बेचेंगे जब हमें गवर्नमेंट देगी। बाकी ये जो आटा है ना ये इसकी क्वालिटी होती है बेहतर, तो इस वजह से ये थोड़ा रेट में जो है ना महंगा पड़ता है। आटे की कीमतों में कमी न होने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। सर देखें, आटा महंगा है वो तो अपनी जगह पे, इस टाइम पे इतनी महंगाई हो गई है कि आम इंसान गरीब बंदा तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स का कहना है कि आवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए गंदुम की बिला रुकावट तरसील जरूरी है। कैमरामैन फरहान के हमरा काविश मेमन 321। ओल्ड सिटी एरिया के रिहायशी और तजारती इलाके रनछोड़ लाइन की जिना स्ट्रीट तजावुजात माफिया के चुंगल में फंस गई। DMC और KMC की अदम दिलचस्पी के बायस तजावुजात में इजाफा होता जा रहा है। जिना स्ट्रीट के दुकानदारों ने तजावुजात हटाने का मुतालबा कर दिया। जुनेद जावेद की रिपोर्ट। ये इलाका रनछोड़ लाइन की जिना स्ट्रीट का है, जहां साबिक सिटी नाजिम सैयद मुस्तफा कमाल के दौर में 600 से ज्यादा पथारे लगाए गए थे। पथारों के बाइस दुकानदारों का कारोबार ठप हो चुका है। मार्केट के दाखिली और खारजी रास्तों पर गुजरने की जगह भी बाकी नहीं रही। रनछोड़ लाइन सराफ एसोसिएशन के नायब सदर अनीस पटेल कहते हैं कि शिकायत दर्ज करवा कर थक चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। जब 60 फुट के रोड को 7 फुट तक कर दिया जाएगा तो मुझे शौक थोड़ी है मैं इनका कारोबार तबाह करूँ। मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मेरा मामला सही कर दो, मुझे कोई इशू नहीं, अपना काम करो। हम तो इनसे कहते रहे कि यार हम बाइक भी खड़ी करते हैं 1-2 मिनट के लिए, सबको तकलीफ होती है, तो मतलब तकलीफ इन्हें भी है और हमें भी है। ज्वेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अदनान दाऊद का कहना है कि कारोबार खत्म हो चुके हैं। तजावुजात की वजह से दुकानें छुप चुकी हैं, पथारेदार बदमाशियां करते हैं। आप ये देखें, ये पथारों की जो लाइनें हैं, ना यहाँ से हमारे कोई क्लाइंट आ सकते हैं, ना कोई स्कूटर वाले आ सकते हैं। हमारी दुकानें जो है पीछे हैं, वो इन पथारों से ऊपर छुप चुकी हैं। दुकानदारों ने KMC और DMC के रवैये पर दुकानें बंद करने का भी अंदिया दिया है। ये सारे टीए इन लोगों ने 600 से ज्यादा टीए लगे और अपनी मर्जी कर चलाते हैं, हर चीज़ अपनी करते हैं। हम बड़े परेशान हो गए। आखिरी हाल यही है कि हम अपनी दुकान को बंद करके काउंटर को सड़क पे ही लगा देंगे और क्या करें। हमारी करोड़ों रुपए की दुकान है पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। मार्केट में गोल्ड के अलावा आप देखेंगे तो बर्तन वाले हैं, किराने वाले हैं, दीगर और बिजनेस बहुत सारे हैं यहाँ पर। अब कस्टमर यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन मसला है कि यहाँ निज़ाम का बड़ा मसला है। यहाँ पर अगर कस्टमर आता है तो यहाँ गंदगी बहुत है, यहाँ पर एक अजीब व गरीब माहौल है, हुटिंग बहुत है और यहाँ पर एक अच्छा निज़ाम नहीं है। रनछोड़ लाइन के ताजिरों की तजावुजात से मुताल्लिक शिकायत आला हुक्काम के पास जमा हैं। इलाके में मौजूद सियासी जमात के लोगों की सरपरस्ती की वजह से पथारेदार एक माफिया बन बैठे हैं। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं कि कराची समेत सूबे भर में इम्तहानात का सिलसिला जारी है। नाजिम इम्तहानात मैट्रिक बोर्ड हबीबुल्लाह सुहाग और चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर मसूर अहमद ने मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तहानात चौथे रोज़ भी जारी रहे। नाज़िम इम्तहानात सानवी तालीमी बोर्ड कराची हबीबुल्लाह सुहाग ने सुबह की शिफ्ट में 3 इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया। गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुश असलूबी से अंग्रेज़ी हिस्सा अव्वल का पर्चा मुनक्किद हुआ। आज इंग्लिश 2 का पहला पेपर था बहुत बड़ा, तो माशाल्लाह खुश असलूबी से जारी है और दोपहर का जो है वो जनरल ग्रुप का है
और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अच्छी तरीके से हो जाएगा। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत TCS हिस्सा अव्वल इस्लामियात का दूसरा पर्चा हुआ। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर मसरूर अहमद शेख ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि TCS हिस्सा अव्वल में 1255 और दूम में 1205 तलबा तलबात शरीक हैं। इस वक्त जो है हमारे यहाँ 1205 स्टूडेंट जो हैं वो 9th क्लास में हैं और 1255 स्टूडेंट जो हैं वो 10th क्लास में अपेयर हो रहे हैं इस दफ़ा एग्ज़ाम में मैट्रिक टेक्निकल के। लोड शेडिंग के बेकाबू जिन ने तलबा को जुमेरात भी ना बख्शा। तालिब इल्म और सुबह शाम की शिफ्ट पर मामूर सुपरिटेंडेंट ने बिजली की अदम दस्तियाबी पर शिकवा किया। पेपर बहुत अच्छा गया और टीचर्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया। लोड शेडिंग का मसला था थोड़ा, बस बाकी बहुत अच्छा वो था। कम से कम बच्चों का जो दौरानिया इम्तिहान का इसमें बिजली को पावरफुल रखें। 2 बजे से इनका पेपर शुरू होता है, 5 बजे तक रहता है टेक्निकल का, और कराची बोर्ड का 2:30 से होता है। वो पीक आवर्स होते हैं, उसमें अगर लोड शेडिंग और पावर सप्लाई अगर नॉर्मल हो तो बच्चों को ये तकलीफ ना हो। टेक्निकल बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर मसरूर अहमद ने 2 इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया, जिनमें गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल गुलशन और पाकिस्तान स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लांडी शामिल हैं। सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने समुंदर में खाम तेल और सनती फजले के खराज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत वोटर बोर्ड की रिपोर्ट जमा होने पर मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट में समंदर में खाम तेल और सनती फजले के अखराज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीवरेज और माहौलियाती फजले से मुतल्लिक ग्रेटर कराची सीवरेज एसटी पर काम जारी है। मंसूबे का मकसद कराची के सीवरेज और माहौल को बेहतर बनाना है। ये मंसूबा 500 MGD म्यूनसिपल सीवरेज के लिए है। हुकाम ने बताया कि DHA गोल्फ क्लब ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना भी कर लिया गया है। रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। मलिर जेल से 199 माहिगीरों समेत 200 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले माहिगीर और शहरी 5 साल से गैर कानूनी तौर पर समुद्री हदूद क्रॉस करने के जुर्म में कैद थे। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। सरकार के तासुबाना रवैये के बावजूद पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। पाकिस्तान ने 200 भारतीय शहरियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में 199 माहिगीर और 1 शहरी शामिल हैं। भारतीय माहिगीर और शहरी गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने के जुर्म में 5 साल से कैद थे। मलिर जेल से रिहाई मिलने पर माहिगीरों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जेल हुकाम और समाजी शख्सियात की जानिब से कैदियों को रिहा होने पर तोहफे भी दिए गए। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी और फिशर फॉक के नुमाइंदा कहते हैं, रिहाई पाने वाले भारतीय माहिगीरों और शहरियों को ट्रेन के जरिए लाहौर भेजा जा रहा है, जहां इन्हें वहां बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। ये इसमें कुछ माहिगीरों ने बताया वो 5 साल से कैद थे यहाँ पे और बहुत ही खुश थे जाने से, और इनके घर वालों को जाके मिलेंगे और फिर से जो है वो अपना रोजगार शुरू करेंगे ताकि इनके बच्चों को कमा के दे सके। दोनों हुकूमत से मुतालबा भी यही है कि आपने जो पकड़े हैं उनको रिहा किए, क्योंकि ये 500 चले जाएगा, फिर भी 163 लोग रह जाएंगे और 98 पाकिस्तानी अभी तक वहाँ पर इंडिया में मौजूद है जिनके आने का भी कोई नामो निशान नहीं है। माहिगीरों को पाकिस्तान में लेबर का दर्जा देना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड किया जाए और अगर उन पे इस तरह का कोई बुरा वक्त आए तो उनकी फैमिलीज की जो है वो रियासत सपोर्ट कर सके। फैसल ईदी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने तो जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय माहिगीरों को रिहा कर दिया, ताहम भारत को भी अपने रवैये पर नजरसानी करनी होगी। बेगुनाह और गलती से समंदर हदूद पार करने वाले माहिगीरों को रिहा करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद वाहिद के हमरा अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। सिंध हाई कोर्ट ने अदाकारा महविश हयात और कुबरा खान की आदिल फारूक राजा के खिलाफ दरख्वास्त पर डिप्टी डायरेक्टर FIA से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर के पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा नवीद एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि कागजी कार्रवाई के अलावा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। काबिल एतराज़ तस्वीर और मवाद ताहाल नेट पर मौजूद है। अदालत ने आइंदा समाअत पर डिप्टी डायरेक्टर FIA से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्तों की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।